اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد حسین منی و انا من الحسین۔ میرا حسین مولا شہید کربلا، مولا غریب نینوا، مولا وہ حسین کہ جس کا رونا بھی میرے مولا سے برداشت نہیں ہوتا تھا۔ جناب رسول خدا ایک گلی سے گزر رہے تھے کہ آپ کو کسی بچے کی رونے کی آواز آئی۔ آپ نے صحابیوں سے کہا، ایسا لگتا ہے جیسے حسین رو رہا ہے۔ صحابیوں نے کہا کہ مولا یہ حسین کی آواز نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ بالکل اس کا رونا میرے حسین جیسا ہے۔ جاؤ دروازہ کھٹکھٹاؤ، دیکھو کون بچہ ہے۔ دروازہ کھٹکھٹایا، دروازے پہ وہ خاتون آئیں اور آ کے کہتی ہیں کہ جی مولا کیا حکم ہے؟ کہا یہ بچہ کیوں رو رہا تھا؟ کہا مولا ضد کر رہا تھا، میں اسے سمجھا رہی تھی۔ رسول خدا نے کہا دیکھو اس بچے کو کبھی نہ رونے دینا، اس کی آواز بالکل میرے حسین جیسی ہے۔ وہ میرا رسول، وہ میرا آقا، وہ میرا مولا، وہ ماہی، وہ شافی محشر جو حسین کے رونے کی آواز کا درد اگر کوئی بچہ بھی اس جیسی آواز میں روئے تو برداشت نہ کر سکے، میرے مولا نے کیسے برداشت کیا ہوگا؟ جب آپ ولید کے دربار سے واپس آئے اور آپ نے سب کو تیاری کا حکم دے دیا، جب آدھی رات ہوئی تو جناب امام حسین وہاں پہ گئے جو نانا کا روضہ تھا، جو نانا کی قبر تھی۔ قبر پہ جا کے آپ نے اپنے دونوں ہاتھ پھیلائے، سر قبر پہ رکھ دیا اور روتے ہوئے کہنے لگے نانا اب مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہ گیا۔ نانا میں آپ کی قبر پہ چراغ جلاتا تھا، آپ کی قبر پہ چراغ جلانے والا حسین اب جا رہا ہے۔ اتنا آپ روئے کہ غش آ گیا۔ جب آپ کو تھوڑی دیر کے بعد غش سے سکون ملا تو آپ نے اس وقت یہی دیکھا کہ جیسے رسول خدا آئے ہیں، آپ کے بال بکھرے ہوئے ہیں، گریبان چاک ہے، اور کہتے ہیں حسین میں بھی تیرے ساتھ آؤں گا میرے لال۔ اور آپ وہاں سے رخصت ہو کے بھائی حسن کی قبر پہ آئے تو ایسے آئے کہ جیسے ایک شیر چلتا ہوا آتا ہے، ہمت کر کے بھائی کی قبر پہ آئے، بھائی سے رخصت لی۔ لیکن جب میرے مولا حسین ماں کی قبر کی طرف بڑھے تو بالکل جیسے بچپن میں حسین بی بی فاطمہ کی طرف ہاتھ بڑھاتے تھے، جب بی بی بیٹھی ہوتی تھیں، مولا حسین گھر میں داخل ہوتے تھے تو ڈھونڈتے تھے اماں کہاں ہے، اور بی بی فاطمہ اپنے ہاتھ بڑھا کے کہتے تھی حسین آ میرے سینے سے لگ جا۔ آج اسی طرح سے میرے مولا حسین ماں کے قبر کی طرف بڑھتے چلے جاتے تھے۔ آپ کے قدم ایسے تھے جیسے چھوٹا بچہ چلتا جاتا ہے، روتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے اماں اب تیری قبر سے بھی جدائی کا وقت آ گیا ہے، اماں میں تجھے چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ بہت بے قراری سے آپ رو رہے تھے اور قبر فاطمہ سے یہی آواز آ رہی تھی حسین تیری ماں بھی تیرے قافلے کے پیچھے پیچھے ہوگی۔ وہ میرا مولا حسین تشریف لے آئے گھر، فہرست بننے لگی، میرے مولا غازی عباس لکھنے لگے۔ سب سے پہلے مولا حسین کا نام لکھا، پھر بھائیوں کے نام لکھے،
फिर बहनों के नाम लिखे, फिर बेटियों के नाम लिखे। जब बेटियों के नाम लिख रहे थे ना, तो बीबी सकीना ना बाबा को से जुदा रहती थी और ना चचा से। आप तशरीफ़ लाई और मौला हुसैन की गोद में बैठ गईं। फहरिस्त तैयार हो रही थी तो कहती हैं, बाबा फहरिस्त तो तैयार हो रही है, किस किस का नाम लिखा गया है, बहनों में किसका नाम है? तो आपने फरमाया कि कुबरा बिनते हुसैन, सकीना बिनते हुसैन। और फिर आपने एकदम बाबा का चेहरा देखा, चचा का चेहरा देखा और कहा, मेरी बहन सुगरा नहीं जा रही? मेरे मौला हुसैन ने कहा, नहीं, सुगरा बीमार है मेरी बेटी, इसलिए सुगरा नहीं जाएगी। जनाब सकीना तड़प के कहती हैं, बीमारों को घर तो नहीं छोड़ा करते बाबा, अकेली रह जाएगी मेरी बहन तो उसको दवा कौन देगा? बाबा सुगरा बहन बहुत बीमार है। और रोती हुई जनाब सुगरा के पास आई और जनाब सुगरा से कहती हैं, सब इराक जा रहे हैं। जनाब सुगरा कहती हैं, चलो अच्छा है, मैं भी जाऊंगी, मेरी भी तबीयत ठीक हो जाएगी। जनाब सुगरा की बात सुन के कहती हैं, बहन सुगरा आप नहीं जाएंगी। कहा, मुझे क्यों नहीं लेके जाएंगे बाबा, मैं इतनी बीमार हूँ, मुझे कैसे अकेला छोड़ेंगे? नहीं सुगरा बहन, आप यहीं रह जाएंगी। सफ़र तैयार हुआ। एक एक बीबी आती, जनाब सुगरा से रुखसत होती, अपने घर की चाबी जनाब सुगरा के सिरहाने रखती। सब बीबियाँ जा रही थीं, बस 2 बीबियाँ रह गईं। एक रुबाब गोद में लिए असगर को बैठी हैं कि इतने में जनाब ज़ैनब अंदर तशरीफ़ लाई। जैसे ही जनाब ज़ैनब को देखा ना तो उठने की कोशिश की, लेकिन उठ ना सकी। जनाब ज़ैनब ने भतीजी का सर गोद में रखा और कहा, सुगरा इजाज़त दे अब जाने की। मेरी फूफी, आप मुझे बहुत प्यारी हैं और आपकी बात तो मेरा बाबा हुसैन बहुत मानता है। फूफी, मुझे आप अपने साथ ले जाएं। कहा, सुगरा आप बीमार हो ना, गर्मी का सफ़र है, मैं आपको कैसे लेके जाऊं, और न जाने कैसा सफ़र होगा। मेरी बीबी सुगरा एकदम उठ के बैठी, फूफी के गले में बाहें डाल के कहा, फूफी मुझे कुछ ना बताओ, फूफी मुझे सब पता है, मुझे सब पता है। कहा, सुगरा तुझे क्या पता है? कहा, फूफी जब आधी रात होती है तो इस घर में एक काले बुर्के वाली बीबी आती है और वो बीबी इतनी दर्दनाक आवाज़ में मेरे बाबा का नाम लेके रोती है और ये कहती जाती है, हाय हुसैन, हाय करबला के प्यासे हुसैन, हाय शहीद हुसैन, हाय मजलूम हुसैन। उसकी आवाज़ में इतना दर्द होता है कि फूफी मुझसे सोया नहीं जाता। फूफी मेरे बाबा के लिए कोई अच्छा सफ़र नहीं है। वो औरत, वो बीबी बहुत दर्द से रोती है। बीबी ज़ैनब की आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं और रो के कहती हैं, माओं के दिलों को खबर हो जाती है जब उनके बच्चे को कोई तकलीफ हो तो। ये तेरी दादी फातिमा है जो खुद भी कब्र से बाहर आके फरियाद कर रही है। एक एक बीबी रुखसत होने लगी। बीबी ज़ैनब रुखसत हुई, जनाबे रुबाब खड़ी हुई और कहा, सुगरा मुझे भी इजाज़त दो। तो आपने कहा, अच्छा आप भी जाना चाहती हैं, थोड़ी देर को अली असगर को मुझे दे दें। जनाब अली असगर को गोद में लिया और आप खामोश होके बैठ गईं। कहा, सुगरा अली असगर को मुझे दे दो। कहा, नहीं, मैं अली असगर के साथ यहाँ रहूँगी, मैं अली असगर के बग़ैर नहीं रहती। जनाब इमाम हुसैन आए। कहा, सुगरा अली असगर को मेरी गोद में दे दो। जनाब असगर छोड़ते नहीं थे जनाब सुगरा को। न जाने आपने क्या कहा कि जनाब अली असगर ने सुगरा की गोद छोड़ दी। जब सब चले गए तो जनाब सुगरा ने कहा, अम्मा उम्मे सलमा, मुझे दरवाज़े के पास बिठा दें, मैं काफ़िले को जाते देखती रहूँगी। जब काफ़िला जाता रहा,
एक एक हमारी गुजर गई, एक एक घोड़ा सवार गुजरता किया। जनाब उम्मुल बनीन और जनाब उम्मे सलमा बताती रहीं, अब कासिम गए हैं, अब औन गए हैं, अब मोहम्मद गए हैं। आखिर में सवारी जब जनाब अली अकबर की आई तो जनाब सुगरा ने कहा, अली अकबर से कहो एक दफ़ा मुझ बीमार बहन से मिल ले। जनाब अली अकबर घोड़े से नीचे उतरे, जनाब सुगरा के नज़दीक आए। आके दोनों बहन भाई ने गले में बाहें डाल दी और जनाब सुगरा ने दर्दनाक नज़रों से मौला अली अकबर के चेहरे को देखते हुए कहा, भैया चचा अब्बास मुझे नहीं लेके जा रहे भाई, लेकिन तू तो मेरा भाई है, मेरे हिस्से का भाई है। अली अकबर मुझे इस वीरान घर में ना छोड़ के जा, मैं मर जाऊंगी। जनाब अली अकबर रो रहे थे कि जनाब मौला हुसैन ने कहा, जाओ अली अकबर से कहो देर हो रही है, मेरी बहनें अमारी में बैठ चुकी हैं। जैसे ही मेरे मौला नज़दीक आए, हाल देखा दोनों बहन भाइयों का, तो कहा कि मौला हुसैन जिस हाल में अली अकबर और सुगरा हैं मैं नहीं जा सकता, आप तशरीफ़ ले जाएं। मौला हुसैन नज़दीक आए, दोनों बच्चों को रोते हुए देखा, तड़पते हुए देखा। आके कहते हैं, अली अकबर उठ मेरे लाल, इसलिए कि मेरी बहनें अमारी में बैठी हैं, बहुत देर हो गई, थक जाएंगी, सफ़र तैयार है। मेरे मौला अली अकबर ने बाबा के चेहरे की तरफ नज़र डाली और कहा, बाबा आपकी बहनें इतनी देर में थक जाएंगी, बाबा मेरी सूरा यहाँ अकेली रह जाएगी, बाबा इसके पास कोई नहीं होगा। जनाब अली अकबर जब खड़े हुए तो मेरी बीबी सुखरा ने बाबा हुसैन को देखा, फिर अली अकबर को देखा, कहा अच्छा अली अकबर जाओ बाबा लेने आए हैं। फिर आपने कुछ मट्टी इकट्ठी की और कहा, अली अकबर इस मट्टी पे अपने कदमों के निशान देता जा, तू तो चला जाएगा, मैं इन कदमों को देख के तेरी याद ताज़ा करती रहूँगी। अच्छा अली अकबर एक वादा मुझसे ज़रूर कर कि मुझे अपनी शादी में तो बुलाएगा ना, तेरी शादी होगी, पुप्पियों ने बड़े अरमान से तेरे लिए चीज़ें तैयार की हैं। जनाब अली अकबर ने सुगरा की तरफ देखा, बैठे बहन की पेशानी का बोसा लेके कहा, सुगरा मैं ज़रूर आऊँगा, मैं 7 मुहर्रम को तुझे लेने के लिए आऊँगा। आप रवाना हुए। जब काफ़िला रवाना हुआ तो जनाब ज़ैनब की अमारी के एक तरफ मेरे मौला अली अकबर और एक तरफ मेरे मौला हुसैन थे, और इसी तरह ये काफ़िला रवाना था कि एक दफ़ा जनाब ज़ैनब देखती हैं कि मौला हुसैन नज़र नहीं आए। जनाब अली अकबर से कहा, मुझे हुसैन नज़र नहीं आ रहा, मेरा भाई नज़र नहीं आ रहा। आप तड़प गई। जनाब अब्बास काफ़िले में सबसे पीछे होते थे। कहा, अब्बास को इत्तला दो कि हुसैन नज़र नहीं आ रहा। मेरे मौला हुसैन मदीने की तरफ से जैसे ही आ रहे थे, गाजी अब्बास ने देखा कि मौला हुसैन के अमामे के पेच खुल के गले में आ गए हैं और मेरे मौला बेकरारी से रोते जा रहे हैं। मेरे मौला अब्बास नज़दीक गए और कहा, आका आप इस हालत में। मेरे मौला हुसैन घोड़े से नीचे तशरीफ़ लाए और गाजी अब्बास के गले में बाहें डाल के कहा, अब्बास बेटियां बड़ी प्यारी होती हैं, बेटियां बहुत प्यारी होती हैं अब्बास, और जो बेटी बीमार हो वो तो और भी प्यारी होती है। मुझे मेरी सूरा बड़ी प्यारी है, मुझसे उसका रोना बर्दाश्त नहीं हो रहा था, इसलिए मैं देखने गया था कि अकबर को छोड़ने के बाद सूरा की क्या हालत है। लेकिन जो मैं उसकी हालत देख आया हूँ मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। मैं हुक्म इलाही के तहत मजबूर हूँ। मैंने देखा मेरी सूरा कभी घर की एक दीवार से सर टकराती है, कभी दूसरी दीवार से सर टकराती है और रो
رو کے کہتی ہے بابا حسین تیرے بغیر سغرا مر جائے گی، علی اکبر تیرے بغیر سغرا مر جائے گی، مجھے اس ویران گھر میں چین نہیں آ رہا۔ عباس مجھ سے سغرا کی یہ حالت دیکھی نہیں گئی۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ بار الہی ذکر کے صدقے ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دے، جو مومن اور مومنات اس دنیا سے چلے گئے انہیں بخش دینا۔ اے میرے مولا اس وقت کے صدقے میں، ان آنسوؤں کے صدقے میں ہمیں قبر کے عذاب سے بچانا، روز محشر ہمیں پیاس کی شدت سے بچانا۔ جناب فاطمہ زہرا اپنے لال کے صدقے اپنے ہاتھوں سے جام کوثر پلائیں۔ اے میرے مولا ہمارے اس پرسے کو قبول کر لینا، یا امام زمانہ، یا پنجتن پاک چہاردہ معصومین، یا جناب زینب، یا جناب صغرا و کبریٰ و سکینہ، ہمارے اس پرسے کو قبول کر لینا۔ اے میرے مولا امام زمانہ آپ وقت کے امام ہیں، میرے مولا ان تمام جگہوں کی حفاظت ہو جہاں پہ عزاداری حسین ہو رہی ہے، جہاں پہ حسین کا نام لیا جا رہا ہے، ان جوانوں کی خیر، ان بزرگوں کی خیر، ان عورتوں کی خیر، ان بچوں کی خیر، میرے مولا جہاں جہاں پہ بے ذکر محمد و آل محمد، ذکر حسین اور غربت حسین ہو رہا ہے، میرے مولا ان جگہوں کی اور ان سب انسانوں کی حفاظت میں رکھنا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔